कुठपर्यंत आलोय हो? स्विच केस झालंय का? यस. हॅलो. Let us start. Hello. Hello. Let us start. Hello. Yes, sir. Switch case last time we have seen, is it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sure. Let us start and a looping control statements. This is second type of statements where certain instructions, if you wanted to execute again and again, so looping control statements will help us to execute and certain statements again and again. And in case of looping control statement, we will be understanding there are three statements: while, do while, and for. In decision control statements, we understood if else, else if ladder, nested if else, and switch case. Yes? Yes, sir. Yes, sir. So in looping control statements, we will understand three types of statements: for loop, while loop, and do while loop. So we are calling it as looping control statement. Loop means what? One cycle. So certain statements will be executed again and again if logical condition remains true. Okay, that is the difference. That is the difference between decision control statement and looping control statement. In case of looping control statement, if logical condition is remaining true, so body of looping control statement gets executed again and again. In case of decision control statement, it will be executed only for one time. Okay. Yes, sir. Once again, I am repeating, in decision control statement, if logical condition remains true, body gets executed only for one time. That is not happening in looping control statement. In case of looping control statement, body gets executed and again. If logical condition remains true, body gets executed. When logical condition will remain false, then only execution of the
body gets stopped. That is the difference between looping control statement and decision control statement. I'm sharing an whiteboard. Is it visible? Hello, hello. Yes, sir. Here, looping control statements क्या है? उसमें से पहला जो है ना while, वो समझ के लेंगे पहले. Let us understand while. So before understanding and first looping control statement, that is while, let us understand for looping control statement, three basic things are required. That is initialization. यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे ना, टाइप करेंगे. Initialization of looping variable. Okay. Second point, logical condition, and third one, updation of looping variable. Okay. So for any looping control statement, three basic parts are required, and let us try to understand initialization of looping variable, logical I think for logical condition, I should not supposed to explain now, because already decision control statements we have seen where we used, okay, different kinds of logical conditions. Yes. Hello. So to write logical condition, either we can use logical operators or we can use relational operators. If you are dealing with single logical condition, you can use relational operator. If you wanted to use collection more than one logical conditions, you will go with logical operators. Yes, with which we can write our logical condition. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Important thing is what? For looping control statement, you will have to understand initialization and updation of looping variable. So उसके पहले है ना, let us understand what is meant by looping variable. जैसा हमारे प्रोग्राम में कोई वेरिएबल रहता है, so one variable and specific variable and separate specific variable will be using for looping control statements. तो normally हम यहाँ पे I, J, K, okay, so such kind of looping variables will be using. आपको ABC यूज करने का है, ABC यूज करो, है ना, नो इश्यूज. PQRS यूज करने का है, PQRS यूज करो, नो इश्यूज. But these variables should be different and a little bit different than our normal variables, because so that we can understand I, J, K, these are our looping variables. Will it be okay? Hello. Yes, sir. Yes, sir. तो हमको समझ में आने के लिए, ठीक है, so that we can understand after observing this I, J, K, immediately we will understand these are the looping variables. So we have used, okay, looping control statement in our program, which will be executing certain code again and again. Therefore IJK ये हमारा क्या है, देखो है ना, we have decided and IJK we are using for looping variables. If you wanted to use PQR, STQ, STV and such kind of variables also you can use, but for our understanding purpose we will be using IJK. Okay, कोई भी यूज करो, कौन सा भी वेरिएबल यूज करो, बट ये हमारा IJK मतलब we are using looping control statements. Okay. हेलो. Yes, sir. तो लूपिंग वेरिएबल क्या है? तो IJK रहेगा, इंटीजर यूज करेंगे हम, इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स, इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल रहेगा जो लूपिंग वेरिएबल है. एंड इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि इनिशियली सर्टेन वैल्यू वी आर ट्राइंग टू स्टोर इन द लूपिंग वेरिएबल. ये जो IJK वेरिएबल है, इनिशियली वी आर स्टोरिंग एन सर्टेन वैल्यू इन द लूपिंग वेरिएबल. सो यहाँ पे एग्जांपल के लिए है ना, आई एम राइटिंग I is equal to 1. So this is initialization. Initially certain value we are trying to store in the looping variable where I is looping variable. Okay. Hello. Yes, sir. If you wanted to initialize I is equal to 5, it's up to you, and any value you can store in the looping variable. Sorry.
any value you can store in the looping variable. You can write I is equal to 10, no issues. From where you are starting, that you can decide. Hello, okay. So when you are initializing any specific value and at the start of this looping control statement, we are calling it as initialization of looping variable. Initially certain value we are storing in the looping variable is called as initialization of looping variable. Okay. Hello. Yes, sir. लॉजिकल कंडीशन क्या है? तो लॉजिकल कंडीशन जो है वो लूपिंग वेरिएबल यूज करके लिखने का है हमको. फॉर एग्जांपल I is less than or equal to 5. So this is my logical condition. Similarly, here also you can write, here also you can write. I am not writing. You can write it. According to logic, it will vary. According to logic, it will change. Logical condition changes according to the logic. How many times you wanted to execute a body of looping control statement, it depends on you. Therefore, यहाँ पे चेंज होगा है ना अकॉर्डिंग टू योर लॉजिकल कंडीशन. ठीक है. लॉजिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि आइदर यू कैन यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स जो 6 है, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, is equal to, not equal to. So all these 6 operators will help us to write logical condition. And if you are dealing with more than one logical conditions, in that case you can use, okay, logical operators, logical and, logical or and logical not. Yes. Hello. Yes, sir. So this is the second part, and this is also important. And this logical condition, while writing logical condition, you will have to focus, you will have to consider initialization step. It means logical condition is totally depend on the initialization that we will see with one example, but you try to understand while writing logical condition, you will have to consider your initialization step. It means logical condition is totally depend on the initialization. Okay. Hello. Yes, sir. और थर्ड जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, दैट इज अपडेशन ऑफ लूपिंग वेरिएबल. अब यहाँ पे देखो, इनिशियली वैल्यू ऑफ आई जो है वो 1 है. यहाँ पे आएगा, वो लॉजिकल कंडीशन चेक करेगा. लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट चेक्स द लॉजिकल कंडीशन 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये ट्रू होगा. यस. एक जो है वो 5 से कम है या 5 बराबर है, तो ये ट्रू होगा. अगर लॉजिकल कंडीशन ट्रू रहता है तो बॉडी ऑफ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स ओके गेट एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होता है. बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होता है. अभी एग्जीक्यूट, ये सपोज मेरा बॉडी है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 लिखा है. ओके. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा. अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हमने कुछ अपडेशन नहीं किया है ना लूपिंग वेरिएबल का, इफ सपोज वी आर नॉट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ लूपिंग वेरिएबल, सो एवरी टाइम वैल्यू ऑफ आई रिमेन्स 1, तो यहाँ पे आएगा, वो लॉजिकल कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5. अगेन इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. अगेन इट विल गो टू लॉजिकल कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट एंड व्हिच आई इनिशियली एंड वी हैव सीन दैट फ्लो चार्ट. इज इट? कैसे एग्जीक्यूशन होता है लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का. यस. Yes, sir. अगर लॉजिकल कंडीशन ट्रू रहेगा हमेशा के लिए, तो ये जो बॉडी है वो हमेशा एग्जीक्यूट होते रहेगा. ट्राई टू इमेजिन, अगर हम अपडेशन नहीं कर रहे हैं, इफ वी आर नॉट चेंजिंग वैल्यू ऑफ लूपिंग वेरिएबल जो है i इज इक्वल टू 1, इनिशियली वी हैव इनिशियलाइज्ड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिकल कंडीशन 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 ऑलवेज ट्रू रहेगा. तो जो भी कुछ बॉडी लिखा है हमने, वो बॉडी gets executed for infinite times. To avoid this, updation is required. तो अपडेशन के 2 मीनिंग है. आइदर यू कैन इंक्रीज, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं i प्लस प्लस, आइदर यू कैन इंक्रीज वैल्यू ऑफ लूपिंग वेरिएबल बाय 1, ये वन वे है. और दूसरा जो है, यू कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लूपिंग वेरिएबल बाय 1, i माइनस माइनस. तो i प्लस प्लस क्या है, i माइनस माइनस क्या है, दैट वी हैव सीन इन यूनिट नंबर 1, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. यस. Yes, sir. तो यहाँ पे आपको एक तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा along with your looping variable inside the body, और
डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अभी कब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, कब डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी टू बेसिक थिंग्स फॉर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। नंबर वन, इनिशियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूपिंग वेरिएबल एंड लॉजिकल कंडीशन, ये दोनों के ऊपर आपका अपडेशन डिपेंडेंट है। ओके, हेलो हेलो। Yes, sir. अभी एक एग्जांपल से डायरेक्ट हम समझेंगे इस चीज को, ठीक है। सो हैव यू अंडरस्टूड फॉर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट थ्री बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड, इनिशियलाइजेशन, लॉजिकल कंडीशन एंड अपडेशन। हेलो, यस। Yes, sir. Yes, sir. अभी हम डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर जाएंगे ना, टर्बो सी ओपन करता हूँ। Is it visible? Hello. Yes. Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे लिखता हूँ एसी प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। जो पहला वाला है वो सीखेंगे व्हाइल। उसका सिंटैक्स देखा गया तो कैसा है सिंटैक्स, सिंटैक्स आई विल राइट सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। देखो है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूपिंग वेरिएबल, ये पहला स्टेप है। उसके बाद व्हाइल, राउंड ब्रैकेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स बॉडी ऑफ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, जैसा इफ का बॉडी था, एल्स का बॉडी था, ना सिमिलरली व्हाइल का भी बॉडी रहेगा, and that body gets executed again and again because it is looping control statement. Okay, hello. Yes. Yes, sir. Yes, sir. After while in the round bracket, if के लिए कैसे किया था, if in the round bracket we are mentioning logical condition, same चीज है यहाँ पे भी, logical condition can be written in the round brackets. तो ये while हो गया, while के बाद logical condition we will have to mention in the round bracket. This is the syntax. Please by heart the syntax, try to understand the syntax. यहाँ पे statement 1, suppose statement 2, and बाद में क्या आएगा, अपडेशन आएगा, अपडेशन ऑफ लूपिंग। ओके, हेलो, सिंटैक्स समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले you will have to initialize your looping variable, then logical condition जो है वो while के बाद है ना, in the round bracket you will have to mention your logical condition. While writing logical condition you will have to check your initialization. Logical condition is totally depend on the initialization of looping variable. Accordingly you will have to change your logical condition. Opening and closing curly bracket represent start of the looping control statement, closing curly bracket represents end of the looping control statement, and together and if you will be considering opening and closing curly brackets, so we are calling it as body of while loop. Okay, hello. Yes, sir. अभी होता क्या है, इनिशियली इनिशियलाइजेशन होने के बाद लॉजिकल कंडीशन machine checks logical condition. If it remains true, body gets executed. Again it will go to logical condition, again if it is remaining true, again body will be executed, again it will go to logical condition until and unless when logical condition will become false. At that time execution of body of looping control statement gets stopped. Okay, hello, have you understood syntax? Hello, yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी सिंपल सा प्रोग्राम से है ना, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, opening curly bracket, closing curly bracket, clr ser to clear the previous output screen, get safe to hold the output screen,
सपोज ऐसा कुछ तो कोड लिखा है जहाँ पे हमको वेलकम मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे दिखाने का है। सो डबल कोट के अंदर वेलकम, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, ठीक है। लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वी आर नॉट यूजिंग, जस्ट वी विल अंडरस्टैंड इफ सपोज आई वांटेड टू डिस्प्ले वेलकम मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन, so with the help of printf function we can display it. Yes, hello. Yes, sir. अब इस ये जो मैसेज है ना, वेलकम मैसेज जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिया, बिकॉज ऑफ printf फंक्शन एक्चुअली वी कैन डिस्प्ले, वी कैन डिस्प्ले वेलकम मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन. नाउ इफ आई वांटेड टू एग्जीक्यूट वेलकम मैसेज 5 टाइम्स, ठीक है, ये जो वेलकम जो है एक ही बार लिखा है हमने, ठीक है, एक ही बार लिखा है, बट सेम printf फंक्शन जो printf वेलकम लिखा है, दैट इंस्ट्रक्शन आई वांटेड टू एग्जीक्यूट 5 टाइम्स. तो ऐसा भी कोई कर सकता है, लेकिन इट इज नॉट वैलिड, ठीक है. 5 बार लिखने का printf वेलकम, printf वेलकम, printf वेलकम, तो डिस्प्ले करेगा. ओके, हेलो. Yes, sir. Yes, sir. but instead of writing 5 times welcome message, if I wanted to execute one statement 5 times, so that is possible with looping control statement. उसके लिए हम looping control statement use करेंगे. लो, ओके. Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी को 50 बार भी दिखाने का है, that is possible. We should not supposed to write an printf function 50 times. किसी ने बोला है ना वेलकम मैसेज आप डिस्प्ले करो है ना 5000 टाइम्स, दैट इज आल्सो पॉसिबल विथ मशीन, दैट इज आल्सो पॉसिबल विथ प्रोग्रामिंग, दैट इज आल्सो पॉसिबल विथ कंप्यूटर, एंड दैट इज आल्सो पॉसिबल विथ योर एंड्रॉइड मोबाइल. इट इज पॉसिबल, एंड सिंपली यू विल हैव टू यूज लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. और उसमें से पहला लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं जिसका नाम व्हाइल है. ओके, चलो. Yes, sir. एक ही बार लिखने का है, we will have to give an instruction for one time, but वो बॉडी में लिखना पड़ेगा while के. तो सिंटैक्स क्या है देखो, एन इनिशियली लूपिंग वेरिएबल we will have to use because we are using looping control statement. so इंटीजर टाइप का i नाम का वेरिएबल लिया, जहाँ पे i जो है वो हमारा लूपिंग वेरिएबल है. सो लूपिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है. कुछ दिक्कत? हेलो. No, sir. No, sir. उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि इनिशियलाइज करो, है ना, कहाँ से तो स्टार्ट करो, है एग्जीक्यूशन जो है वो कहाँ से तो स्टार्ट करो. एंड फॉर इनिशियलाइजेशन आई विल बी राइटिंग i इज इक्वल टू 1, मतलब इनिशियल वैल्यू जो i का रहेगा वो 1 रहेगा. ओके, हेलो. Yes, sir. उसके बाद while लिखेंगे. अगर while लिखने के बाद आपको व्हाइट कलर आ रहा है, मतलब उसका मीनिंग क्या है कि ये कीवर्ड है. ओके, हेलो. Yes, sir. बाद में ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट दिया है, तो ये बॉडी हो गया व्हाइल का. और इन द राउंड ब्रैकेट वी कैन मेंशन लॉजिकल कंडीशन. नाउ व्हाइल मेंशनिंग लॉजिकल कंडीशन यू विल हैव टू राइट लॉजिकल कंडीशन इन सच अ वे दैट इट शुड रिमेन ट्रू एंड एटलीस्ट फॉर वन टाइम. हमको लॉजिकल कंडीशन ऐसा लिखने का है कि वो एटलीस्ट फॉर वन टाइम वो ट्रू रहना चाहिए, है ना, तब जाके वो वेलकम मैसेज एक बार तो दिखाएगा. हेलो, कसमन्नर बघा ना. So here I can write, देखो है ना, I is हमको 5 टाइम्स दिखाने का है ना, 5 टाइम्स दिस बॉडी शुड we will have to execute है ना 5 टाइम्स. मशीन जो है उसको इंस्ट्रक्शन देने का है 5 बार वो वेलकम मैसेज जो है वो एग्जीक्यूट करो. इसके लिए I is लेस देन और इक्वल टू 5 लिखता हूँ मैं. अभी 5 क्यों लिखा है आपको समझ में आएगा, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ I फ्रॉम 1 to 5. तो अब थिंक करो, अभी इनिशियल वैल्यू जो है i का 1 है, यहाँ लॉजिकल कंडीशन के ऊपर आएगा वो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडीशन ट्रू होगा, वेलकम मैसेज जो है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा. दिस विल बी द फर्स्ट टाइम, है ना, वेयर वेलकम मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय द मशीन फॉर फर्स्ट टाइम. यस, हेलो. Yes, sir. तो यहाँ पे अपडेशन करेंगे. i का वैल्यू जो है दैट वी वांटेड टू इंक्रीज फ्रॉम 1 to 5, देयरफॉर आई विल राइट, है ना, i इज इक्वल टू i प्लस प्लस. तो i प्लस प्लस जो है वो अपडेशन होगा हमारा. अभी देखो इनिशियल वैल्यू ऑफ i विल बी 1, यहाँ पे आएगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडीशन रिमेंस ट्रू, इट विल डिस्प्ले वेलकम मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन, इट विल बी डिस्प्लेइंग वेलकम मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन फॉर
फर्स्ट टाइम इमीडिएटली आई प्लस प्लस होगा तो वैल्यू ऑफ आई विल बी इंक्रीज बाय 1, इट विल बिकम 2। यहाँ पे फिर से आएगा लॉजिकल कंडीशन के, वहां पे आएगा वो 2 is less than or equal to 5. Again, logical condition remains true. Therefore, it will display welcome message. Now, machine will be displaying welcome message on the output screen for second time. Yes? Hello. Yes, sir. Again, it will come to I plus plus. Value of I gets increased by 1. It will become 3. 3 is less than or equal to 5. Logical condition remains true. Again, machine will display welcome message on the output screen. Now, machine is displaying welcome message on the output screen for third time. Yes? Yes, sir. Again, value of I gets increased by 1. It will become 4. 4 is less than or equal to 4 and 4. 4 होगा I का value. 4 is less than or equal to 5. Again, logical condition remains true. Again, it will display welcome message on the output screen. Now, machine will be displaying welcome message on the output screen for fourth time. And after this, again, value of I gets increased by 1. It will become 5. 5 is less than or equal to 5. यहाँ पे आएगा, ठीक है? 5 is less than or equal to 5. Logical condition remains true. This is for fifth time. Welcome message gets executed. It will be displayed. है ना? Welcome message will be displayed on the output screen. ये 5वीं बार रहेगा. Fifth time welcome message display होगा output screen के ऊपर. After this, again value of I gets increased by 1. It will become 6. 6 is less than or equal to 5. यहाँ पे logical condition false रहेगा. Yes? Yes, sir. जैसे ही लॉजिकल कंडीशन फॉल्स रहेगा तो 6th टाइम के लिए ये जो बॉडी रहेगा व्हाइल का वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. बिकॉज ऑफ दिस वेलकम मैसेज मशीन डिस्प्लेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन फॉर 5 टाइम्स. हेलो. ओके. Okay, sir. Yes, sir. आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस. कितनी बार आ रहा है देखो, है ना? 5 टाइम्स आ रहा है क्या? यस. Yes, sir. So have you understood? See here, execution speed of computer or execution speed of machine is very very high. यहाँ पे स्पीड उसका बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ विच वी आर गेटिंग एन आउटपुट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. बट हाउ आई एक्सप्लेन्ड, ओके, इन दैट वे एंड एक्चुअली मशीन एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम. मशीन जो एग्जीक्यूशन स्पीड उसका ज्यादा है. अभी देखो यहाँ पे मैंने अगर 10 लिखा तो वो 10 टाइम्स दिखाएगा ना वेलकम मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन. हेलो. Yes, sir. अगर Yes, यहाँ sir. पे, हाँ, अगर यहाँ पे 50 लिखा है ना, 50 या 100 लिखेंगे चलो, तो वेलकम मैसेज 100 टाइम्स दिखाएगा वो. अभी उसका स्पीड इतना ज्यादा है, उसने दिखा दिया है ना, दिखा दिया है एक्चुअली. बट वी आर नॉट एबल टू काउंट एंड वी आर नॉट एबल टू विजुअलाइज द स्पीड ऑफ द मशीन. अभी स्क्रीन भी हमारा छोटा है, तो ऊपर ऊपर का अभी आप काउंट करोगे तो कितना है पता नहीं. स्क्रीन के ऊपर हम कंसिडर करेंगे कि 25 जो वेलकम है वो दिखाई दे रहा है ना, वेलकम वर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है ना 25 टाइम्स. लेकिन हमने जो डिस्प्ले किया है वो 100 टाइम्स है, तो 75 टाइम्स जो है वो ऊपर दिखाया है उसने. हेलो. ऊपर का हमको दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रीन जो है हमारा छोटा है. यस. हेलो. Yes, sir. तो have you understood first है ना how looping control statements are helping us? Hello. Yes. Yes, sir. अभी यहाँ पे और एक चीज है ना, वो स्पीड का बारे में जो है ना that we will discuss है ना. I am including है ना one more header file. Let us call that header file as dos.h. Disk operating system. Sometimes we are calling it as disk operating system header file. And in this file, if you will right click on this file, so you will get a delay function somewhere here. Yes. Hello. Yes, sir. So delay function, if I wanted to use in my program, I will have to include dos.h header file at the top. Yes. मेरे को यूज करने का है डिले फंक्शन इन माय प्रोग्राम. जैसे हमने CLR, SCR, printf, scanf we are using, and similarly delay function I will have to use, and that delay function is available in the dos.h header file. Therefore we are including dos.h header file at the top. उसके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है. हेलो. ओके. Yes, sir. अभी डिले फंक्शन का यूज क्या है, ये जो हमको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है ना वेलकम मैसेज इमीडिएटली है ना विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड डिस्प्ले हो रहा है. यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो हमको थोड़ा सा डिले करके डिस्प्ले होने का है, मतलब करने का है, सॉरी. तो वेलकम मैसेज डिस्प्ले होने के बाद फर्स्ट टाइम इफ वेलकम मैसेज गेट्स डिस्प्लेड,
सो डिले थोड़ा सा हो के है वो सेकंड वेलकम जो है वो दिखाना चाहिए। सेकंड वेलकम मैसेज दिखाने के बाद सम डिले है ना, सम सेकेंड्स ऑफ डिले है ना, होने के बाद वो थर्ड वेलकम मैसेज दिखाएगा है ना। इसके लिए हम डिले फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे डिले है ना, डिले इन द राउंड ब्रैकेट you will have to mention integer number and that integer number will represent milliseconds। अगर मैंने 1000 लिखा तो कितना का डिले होगा? हेलो, 1 second। वेरी गुड, 1 सेकेंड। बिकॉज जो हम इंटीजर वैल्यू है ना, we are writing in the round bracket, it represents millisecond and if I will mention 1000 milliseconds, so ये जो डिले फंक्शन है वो डिले करेगा 1 सेकेंड का डिले रहेगा है between displaying welcome messages। machine will wait for 1 second because of this delay function। hello, okay, yes, hello, Yes sir। see here, and because of delay function on the output screen and what kind of output we are getting, you will understand this। 1 second का delay रहेगा। hello, yes, Yes sir। अगर यहाँ पे देखो है ना 5000 लिखा तो कितना टाइम का डिले रहेगा? हेलो, 5 second। 5 सेकेंड्स। वेलकम मैसेज जो है वो डिस्प्ले होने के बाद 5 सेकेंड का डिले रहेगा। यू कैन इमेजिन, देखो 5 सेकेंड्स होने के बाद वो वेलकम आएगा, उसके बाद 5 सेकेंड्स वो डिले रहेगा बीच में है ना। जो सेकेंड इटरेशन रहेगा है ना, सेकेंड टाइम जब बॉडी एग्जीक्यूट होगा तो उसके बीच में हमने डिले दिया है ना 5 सेकेंड्स का। यस, Yes sir। so have you understood how we can execute? And actually I wanted to display you and by using delay function. Why? Because if we will not be using delay function within fraction of second, and machine evaluates and machine displays the result, but we will not understand is it really displaying and so delay function use करके भी we can observe the output where actually we will get and how machine executes looping control statement। okay, hello, have you Yes, understood this? समझ में आया क्या? कुछ डाउट है तो पूछो। हेलो, डन, हेलो, 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 yes sir। Yes sir। तो अभी देखो है ना, अभी कोई पूछ सकता है कि सर व्हाई यू हैव रिटन ओके आई इज इक्वल टू 1। अगर सपोज यहाँ पे मैंने आई इज इक्वल टू 10 लिखा है ना, क्या चेंजेस होगा यहाँ पे? 5 टाइम्स इफ सपोज आई वांटेड टू डिस्प्ले वेलकम मैसेज, क्या चेंजेस होगा? हेलो, I less than equal to 10। आई लेस देन और इक्वल टू 10, कैसे 10 आएगा है ना? हमको 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करने का है। इफ आई एम इनिशियलाइजिंग आई इज इक्वल टू 10 तो यहाँ पे शायद 14 आएगा। हेलो, आई प्लस प्लस लिखने का है मेरे को, आई प्लस प्लस इट मीन्स आई वांटेड टू इंक्रीज व्हॅल्यू ऑफ आय आणि ईच टाइम बाय 1। Yes sir। विचार करा की तिकडे आहे आय ची व्हॅल्यू 10 आहे 10 ला एकदा एक्झिक्यूट करणार, 11 ला एकदा एक्झिक्यूट करणार, 12 ला एकदा, 13 ला एकदा, 14 ला एकदा, 5 वेळा झालं ते। हेलो, Yes sir। Yes sir। इफ आई विल इनिशियलाइज आई इज इक्वल टू 10, 10 वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं लूपिंग वेरिएबल में, तो लॉजिकल कंडीशन हमको चेंज करना पड़ेगा। देयरफॉर आई हैव रिटन आई इज लेस देन और इक्वल टू 14। तो 10 के लिए पहली बार वेलकम दिखाएगा, 11 के लिए दूसरी बार, 13 के लिए तीसरी बार, 14 के लिए गलत हुआ कुछ तो, ठीक है। 10, 11, 12, 13 एंड 14 5 टाइम्स दिखाएगा। यस, Yes sir। yes sir। विचार करा की मग तिकडे आहे 10 कसं येईल आहे? सपोज मैंने ऐसा लिखा है आई इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन कुछ तो अलग लिख रहा हूं मैं, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या आएगा? 5 टाइम्स मेरे को डिस्प्ले करने का है। हेलो,
I बड़ा है, ठीक है, वो हमको कम करना पड़ेगा। 6 हाँ 6 लिखा तो 10 के लिए पहली बार, ठीक है, देन 9, 8, 7 and 6, यस। चलो Yes, yes sir. sir Yes, sir. 10 से लेके 6 तक, 10 से लेके 6 तक मेरे को आई का वैल्यू डिक्रीज करना पड़ेगा एवरी टाइम बाय 1, देयरफॉर आई शुड नॉट सपोज टू अपडेट माय लूपिंग वेरिएबल विथ आई प्लस प्लस, आई विल हैव टू यूज हंगा I minus minus. आई माइनस माइनस, तब भी जाके हमको वेलकम जो है वो 5 टाइम्स दिखाएगा। चलो Yes, sir. Yes, sir. therefore I was saying initialization, logical condition and looping variable, updation of looping variable, these three operations are totally dependent on each other, yes। Yes, sir. yes sir अभी मेरे को पता हुआ है, मेरे को यहाँ पे i का वैल्यू जो 0 लिखने का है और यहाँ पे i प्लस प्लस करने का है, तो मेरा लॉजिकल कंडीशन क्या रहेगा। हेलो हेलो I less than equal to 5. 5 लिहिल्यावर किती वेळा होणार ते। 4, 4. 4, sir. 4. 0 ला एकदा, 1 ला दोनदा, 2 ला तीनदा, 4 ला 3 ला चारदा आहे ना, 4 ला पाचदा। हेलो Yes, sir. अभी देखो यहाँ पे दो तरीके से है ना, दो तरीके से वी कैन राइट लॉजिकल कंडीशन। आइदर यू कैन राइट आई इज लेस देन और इक्वल टू 4, 0 से लेके 4 तक वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब 5 टाइम्स 0 को काउंट करने का है, ठीक है। 0 to 4 है ना, 0 to 5, 0 to 4 इफ यू काउंट यू विल गेट 5 टाइम्स, यस। हेलो Yes, sir. तो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, लेट अस चेक इट। सो इट इज डिस्प्लेइंग 5 टाइम्स, यस। yes Yes, sir. सेव नहीं किया, क्या लिखा था यहाँ पे, i इज लेस देन और इक्वल टू 4, आई थिंक i प्लस प्लस, यस। लेट अस सेव इट। अभी ये जो कंडीशन लिखा है ना व्हाइल का, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, यहाँ पे ऐसा लिखा तो क्या होगा, i is less than or equal to, instead of using less than or equal to, if I will use i is less than 5, हेलो क्या होगा। हेलो 6 दाखवून कसं 6 पर्यंत दाखवेल हो, i is less than 5 म्हटल्यानंतर 5 ला काउंट सेमच ग्रेट, लेस देन और इक्वल टू आलं तर ते त्या तिथपर्यंत जाणार। हेलो yes sir मतलब क्या है, i is less than or equal to 4 and i is less than 5, मीनिंग रिमेन सेम। ये दोनों लॉजिकल कंडीशन का मीनिंग सेम है। हेलो Yes, sir. विचार Yes, करा sir. विचार करा विचार करा विचार करा, है ना। प्लीज थिंक फॉर हाउ मेनी टाइम्स, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक है ना, तब तक आपको थिंकिंग करना पड़ेगा। i is less than or equal to 4 and i is less than 5, meaning remains same। let us check it, yes। hello Yes, sir. yes तो have you understood this? इसको ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ अगर ये अपडेशन अगर मिस हुआ है, लेट अस सेव दिस, अपडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अपडेशन अगर मिस हुआ तो क्या होगा, i का वैल्यू जो है वो 0 है, 0 इज लेस देन 5, ट्रू है तो वेलकम मैसेज डिस्प्ले करेगा, फिर से वो इधर जाएगा, लेकिन i का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुआ, i का वैल्यू 0 ही रहेगा, 0 इज लेस देन 5 ट्रू, है ना, वेलकम। 0 इज लेस देन 5 ट्रू, वेलकम। 0 इज लेस देन 5 ट्रू, वेलकम। 0 इज लेस देन 5 ट्रू, वेलकम। इट विल नेवर स्टॉप,
hello, machine will never stop to display welcome messages on the output screen. Infinite times welcome message will be displayed by the machine on the output screen. कभी भी रुकेगा नहीं मशीन हमारा. हेलो, Yes, sir. अभी देखो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आप भी ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करके समझ के लो है ना. क्या होगा कि इनफाइनाइट टाइम्स वो एग्जीक्यूट होगा. अभी मैं कुछ भी प्रेस करूंगा है ना, एंटर की भी प्रेस किया तो वो कभी रुकेगा नहीं. हेलो, आई एम प्रेसिंग एंटर की, आई एम प्रेसिंग डिफरेंट कीज बट आई एम नॉट एबल टू स्टॉप दिस एग्जीक्यूशन. हेलो, यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा है ना मशीन का. दैट्स व्हाई यू विल नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअली मशीन इज डिस्प्लेइंग एन वेलकम मैसेज विथ वेरी हाई स्पीड. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ, मतलब इफ मशीन इज नॉट स्टॉपिंग टू एग्जीक्यूट, जो एग्जीक्यूशन चालू है अभी वो विथ वेरी हाई स्पीड, वो अगर रुक नहीं रहा है तो आपको है ना लिख के लो है ना कहीं तो नोटबुक में, कंट्रोल अल्ट कंट्रोल डिलीट, ये तीनों बटन एक साथ दबाने का है. हेलो, ओके, Yes, sir. अल्ट कंट्रोल एंड डिलीट, आई एम प्रेसिंग इट. तो कुछ तो टास्क बार ओपन होगा, ठीक है. टास्क बार में जाके डायरेक्ट आपको वो जो एप्लीकेशन है वो क्लोज करना पड़ेगा. यस, हेलो, हेलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस, Yes, sir. वन सेकेंड, आई एम ओपनिंग इट. गिव मी वन सेकेंड. फाइल का नाम क्या था पता है क्या? हेलो, हाँ, 1.c. व्हेरी गुड. फाईलचं नाव माहित पाहिजे आपल्याला. इफ यू वॉन्टेड टू ओपन अन सेम प्रोग्राम अगेन, इज इट विजिबल? Yes, sir. सो हैव यू अंडरस्टूड कि Yes, आई sir. प्लस प्लस वाई आई प्लस प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपडेशन जो है वो लूपिंग कंट्रोल, जो हमारा बॉडी है, ये लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का बॉडी है, उसके अंदर ही आना चाहिए. अगर वो बाहर गया तो भी कुछ मीनिंग, उसका मीनिंग नहीं है. हेलो, यहाँ पे लिखा तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है. यस, यू कैन थिंक, बिकॉज व्हेन लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू बॉडी गेट्स एग्जीक्यूटेड. तो ये अपडेशन जो पार्ट है वो बॉडी के अंदर ही होना चाहिए. यस, हेलो, Yes, sir. कळलं का? काय अडचण असेल विचारा. हेलो, यू कैन आस्क. एंड वी हैव लास्ट हाउ मेनी मिनिट्स? 24 मिनट्स, पता नहीं. 14. 14 minutes. Okay, very good. Hello. So have you understood this? Let us go to next. Hello, sir. Hmm? Hmm. सर ते इंटिजर I equal to 1 आणि व्हाईलच्या तिथं पण I equal to 1 केलं तर काय होतंय? विचार करा ना काय होईल. हे तुम्ही करून बघायचं. ऍक्च्युली तुम्ही विचारलाय क्वेश्चन, मी सांगेल आन्सर, बट सच काइंड ऑफ थिंग्स यू विल हॅव टू डू ऍट द टाइम ऑफ प्रॅक्टिस. ओके, चलो मी दाखवतो आता. Yes, sir. मी ह्याला सेव्ह एज करतोय ना 2.c. काय म्हणलं मला परत एकदा सांगा, मी करतो ते. हॅलो, I equal to 1 ओके, व्हेरी गुड. आय इज आणि तिथं I equal to 1. आय इक्वल टू 1. आय प्लस प्लस तसंच ठेवायचं आहे. येस, त्याची गरज असेल का सर मग? त्याची No, गरज sir. राहणार की आहे ना, त्याची गरज राहणार की आहे ना. प्रत्येक वेळेस आय हा वनच राहणार आहे आणि इन्फायनाइट टाइम्स एक्झिक्यूट होणार की, हे कुठेतरी थांबलं Yes, पाहिजे. sir. बघा ना, सुरुवातीला काय होणार? आय इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू, इट विल डिस्प्ले वेलकम मैसेज. अगेन इट विल इंक्रीज व्हॅल्यू ऑफ I by 1, इट विल बिकम 2, 2 इज इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडिशन विल रिमेन फॉल्स. इन दिस केस वेलकम मैसेज मशीन विल डिस्प्ले फॉर ओनली वन टाइम. येस, Yes, Yes, sir. दाखवलं का? yes, sir. सो हॅव यू अंडरस्टूड? हॅलो, Yes, sir. हे जर टाकलं नाही तर परत एकदा ते इन्फायनाइट टाइम्स एक्झिक्यूट होणार. विचार करा. मला वाटतं मी सेव्ह नाही केलं ते. तुमचं काय होतंय? आय इज इक्वल टू 1 काहीतरी म्हणला तुम्ही, इथे 1. येस, इट विल एक्झिक्यूट ओनली फॉर वन टाइम. येस, ओके, हॅलो, डन. Yes, sir. Yes, sir. जाऊया पुढे, जाऊया.
कळलं का सगळ्यांना? इनिशियलायझेशन किती महत्वाचं आहे. इनिशियलायझेशन म्हणजे सुरुवातीला काहीतरी व्हॅल्यू स्टोअर करायची, त्या लुपिंग व्हेरिएबल मध्ये काहीतरी व्हॅल्यू स्टोअर करायची. लॉजिकल कंडिशन अशी लिहायची की ती कमीत कमी एकदा तरी ट्रू असली पाहिजे. आणि तुम्हाला किती वेळा एक्झिक्यूट करायची डिपेंड्स ऑन यू. Accordingly, you can use updation of looping variable. Sometimes updation can be increasing the value of looping variable by 1, or sometimes it can be decreasing the value of looping variable by 1. Yes? Hello? Yes? हॅलो सर. हा सर एखादा टेबल तयार करायचं असेल तर? हा येतं ते पुढे बघणार आहेत आपण बरं का. ओके सर. अजून काही? No, sir. आता बघा ना इकडे वेलकम मेसेज आपल्याला दिसलाय ना स्क्रीनवरती. मला असं काहीतरी प्रोग्राम लिहायचा, आपल्याकडे वेळ कमी आहे बरं का. अनफॉर्च्युनेटली हे थोडंसं काढून टाकतोय मी. आय वॉन्टेड टू राईट ए सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. मला 1 ते 10 असे नंबर स्क्रीनवर दाखवायचे आहे ना, बाय युझिंग व्हाईल लूप. लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट व्हाईल वापरायचं. काय काय करणार हो बघा ना. आय इज इक्वल टू 1 घ्यायला लागेल का, तर 1 पासून चालू करायचं. आय इज लेस देन ऑर इक्वल टू काय घ्यायला लागेल इकडे 10. हॅलो. 1 पासून 10 पर्यंत आपल्याला नंबर जर दाखवायचे असेल तर आय ची व्हॅल्यू 1, आय इज लेस देन ऑर इक्वल टू 10. इथे आपल्याला वेलकम मेसेज दाखवायचा नाही. आपल्याला आय ची व्हॅल्यू जर दाखवली आपण, आय ची व्हॅल्यू जी व्हॅरी होते 1 पासून 10 पर्यंत, त्याच्यासाठी इथे बॅकस्लॅश एन म्हणजे एका खाली एक, % म्हणजे इंटिजर व्हॅल्यू कुणाची तर आय ची. हॅलो. ओके. Yes, sir. काय होणार? आय ची व्हॅल्यू 1, 1 इज लेस देन ऑर इक्वल टू 10. लॉजिकल कंडिशन विल रिमेन ट्रू. इट विल डिस्प्ले व्हॅल्यू ऑफ आय, and first value of I is 1, so it will display 1 on the output screen. Again, because of this statement, value of I gets increased by 1. It will become 2. 2 is less than or equal to 10. Logical condition remains true. Again, it will display and a second value of I, that is 2. परत ते इकडे येईल. I plus plus value of I will become 3. 3 is less than or equal to 10. Logical condition remains true. 3 value computer will display on the output screen. परत इथे येणार I ची व्हॅल्यू 4. 4 is less than or equal to 10. True. And असं करत करत आय ची व्हॅल्यू 10 होणार. 10 is less than or equal to 10. Logical condition remains true. Machine will display value of I as 10 on the output screen. Again, value of I will be increased by 1. It will become 11. 11 is less than or equal to 10. Logical condition remains false. Here, machine will stop and executing and displaying values of I on the output screen. Yes? Hello. येस सर. Let us execute this. दिसल्या का 1 ते 10 सगळ्या नंबर्स बघा ना. 1 ते 10 आयच्या व्हॅल्यू थोडक्यात, आयची व्हॅल्यू आपण थोडक्यात दाखवलेली आउटपुट स्क्रीनवरती. हॅलो. Yes, sir. समजा इकडे आता आपण 100 लिहिलं तर तो सगळे नंबर फ्रॉम 1 to 100 दाखवणार. ओके. त्याचा स्पीड एवढा आहे, तो वरचे जे नंबर्स आहेत ते दिसणार नाहीत. 1 ते 75. हॅलो. येस सर. लहान आहे आपली. ठीक आहे. Now in this case, what I can do, instead of using backslash n, I can use backslash t, and backslash t stands for you wanted to display all values of I and horizontally. Yes? Hello. Yes, sir. Machine is displaying all values of I and from 1 to 100 on the output screen. Are you getting how machine is displaying all values from 1 to 100 on output screen? Hello. Because of looping control statement while. Hello. येस सर. अभी देखो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिले स्टार्ट करेंगे. 5 सेकेंड्स का रखा तो हमको 100 into 5 seconds कितना हुआ? 500 seconds. 500 seconds divided by 60 उतना मिनट्स लगेगा. So I am reducing that number. and यहाँ पे 100 milliseconds, तो थोड़ा सा फास्ट दिखाएगा आई का वैल्यू. हेलो. हेलो. येस सर. Machine is displaying all values of I and from 1 to 100. समझ लगा? येस सर. अभी देखो यहाँ पे मशीन इज डिस्प्लेइंग है ना ऑल वैल्यूज फ्रॉम 1 to 100. सब का सब दिखा रहा है ना. आई वॉन्टेड टू गिव है ना इंस्ट्रक्शन टू मशीन. मेरे को मशीन को इंस्ट्रक्शन देने का है कि खाली हमको इवन नंबर जो है ना 1 से लेके 100, 1 से लेके है ना 100 तक खाली इवन नंबर्स दिखा हुआ है ना. such kind of instruction
I wanted to give to machine, तो यहाँ पे I का वैल्यू जो है यहाँ पे दिखा रहा है, ये कब दिखाना चाहिए है ना, इसके लिए डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट आई एम यूजिंग, दैट इज इफ, और ये बॉडी में लिखा है यहाँ पे। तो ये जो बॉडी है मतलब I का वैल्यू जो है वो मशीन कब दिखाना चाहिए, जब इवन रहेगा, I का वैल्यू जब इवन रहेगा है ना, when value of I will remain even, at that time only we wanted to display value of I on the output screen, बाकी ऑड रहेगा तो दिखाने का नहीं है हमको है ना। तो यहाँ पे जो हमने सीखा है ना इवन नंबर का लॉजिक, इवन नंबर का लॉजिक, यहाँ पे I जो है हमारा नंबर है, I को है ना मॉड्यूलर डिवीजन 2 किया और उसका रिमाइंडर जो है वो इक्वेट किया है ना 0 के साथ। अगर ये लॉजिकल कंडीशन ट्रू हुआ है ना, then only we wanted to execute this particular body of if statement, and in the body of if statement we mentioned we wanted to display value of I। जब I का वैल्यू इवन रहेगा तभी है ना, तभी I का वैल्यू डिस्प्ले होगा मशीन के ऊपर। हेलो, यस यस सर। अभी देखो है ना फटाफट, only even numbers and a machine will display on the output screen. So we have given instruction to machine to display all even numbers from 1 to 100. Yes? यस sir. अभी यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये जो डिले है वो निकाल देंगे तो इमीडिएटली इट विल डिस्प्ले फटक से 2 से 100 तक, 1 से 100 तक ऑल इवन नंबर्स। यस, हेलो। Yes, sir. Now again I wanted to give more trouble to machine. I wanted to give more trouble to machine. Instead of displaying even numbers from 1 to 100, I wanted to display even numbers. काय झालं बघा, दिसते का स्क्रीन? यस, हेलो। यस सर। Yes, sir. ऑड का आप देखो है ना, ऑड का आप देखो, ऑड का भी कैसे लॉजिकल कंडीशन लिखने का, दैट वी हैव सीन, यू कैन ट्राई इट फॉर ऑड। I wanted to make I wanted to give more trouble to machine. ऐसा इंस्ट्रक्शन देने का है मेरे को कि नंबर जो है वो इवन भी चाहिए, नंबर शुड बी इवन एंड डिविजिबल बाय 3 एंड फ्रॉम 1 to 100। तो पहला कौन सा नंबर है जो इवन भी रहेगा और डिविजिबल बाय 3 भी रहेगा? हेलो, फ्रॉम 1 to 100। हेलो, 6। उसके बाद 12 आएगा एंड 6 का मल्टीपल्स रहेगा वो 6, 12 एंड 24। यस, Yes, sir. यस सर। तो देखो है ना, जो हमने लॉजिकल कंडीशन लिखा है कि I का वैल्यू इवन होने के बाद दिखाओ, तो यहाँ पे और एक कंडीशन ऐड करना पड़ेगा और दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इसके लिए लॉजिकल एंड आएगा, I मॉड्यूलर डिवीजन 3 इज इक्वल टू 0। तो मशीन चेक करेगा इवन भी है एंड डिविजिबल बाय 3 भी है, तो ही जाके I का वैल्यू दिखाओ स्क्रीन के ऊपर। हेलो, यस। Yes, sir. Let us execute this. So machine will display all numbers from 1 to 100 which are even and divisible by 3. Hello. Yes, sir. If I will give a task to you and please count all such numbers which are divisible by 3 and even from 1 to 100. Count kara fast. फिफ्टीन 15 किती आहेत? 15 ठीक आहे। नाव बघा ना, आपण डोळ्यांनी मोजलं तिकडे, 6 ला 1 म्हणलं, 12 ला 2 म्हणलं, 18 ला 3 म्हणलं, असं मोजत गेलो आपण, 1 2 3 आणि 4 5 6 6 दुने 12 झाले, 13 14 15 16 आहेत, 16 16 Yes, sir. Yes, sir. 16 आहेत मला वाटतं। बघा ना, थोडस स्क्रीन लहान वगैरे करून बघा ना, 16 आहे। मला हेच मशीनला काम द्यायचं आहे ना, आय वॉन्टेड टू गिव्ह सेम टास्क टू मशीन वेअर मशीन विल काउंट आहे आणि मशीन आकडा दाखवेल आहे 16 नंबर्स आहेत। बघा ना, मी फास्ट करून दाखवतोय, समजलं नाही तर आपण पुढच्या लेक्चरला डिस्कस करतोय, माझ्याकडे वेळ कमी आहे बरं का, 2 मिनिट राहिलेत। काय केलं बघा ना, एक व्हेरिएबल वापरलं मी काउंटर नावाचं, जे काउंट करेल काउंटर, अँड इनिशियली मशीनला माहित नाही ना कुठून काउंटिंग करायचं, तर मशीनला सांगितलं की 0 पासून काउंटिंग करायला चालू कर आणि इथे व्हॅल्यू दाखवल्या काउंटरची व्हॅल्यू 1 नी वाढवली आहे ना, काउंटर प्लस प्लस प्रत्येक वेळेस,
आणि गेट ch च्या आधी आहे ना लेट अस डिस्प्ले व्हॅल्यू ऑफ काउंटर ऑन द आउटपुट स्क्रीन टोटल numbers which are even and divisible by and 3 are आहेत ते नंबर्स आहेत पर्सेंट डी काउंटरची व्हॅल्यू आपण डिस्प्ले करतोय आउटपुट स्क्रीन वरती बघा रन करू आपण येस टोटल numbers from 1 to 100 Yes, sir. are even and divisible by 3. Hello. Yes. Yes, sir. Yes, sir. आपल्याला शक्य आहे का हो एवढं फास्ट सांगायला? इज इट पॉसिबल फॉर कोणाला शक्य पण असेल 1 ते 100 साठी शक्य असेल मी जर तिकडे वाढवलंय 1 ते 100 च्या ऐवजी आहे मी म्हणलंय ना मशीनला तिकडे 300 पर्यंत दाखव सगळे नंबर आपल्याला शक्य आहे का आता 100 पर्यंत कुणाला तर शक्य तर असेल 1 पासून 300 पर्यंतचे इव्हन आणि डिव्हिजिबल बाय 3 असलेले सगळे नंबर स्क्रीनवर दाखवून मोजून आम्हाला सांगा ना तिकडे किती आहे येस हॅलो Yes, sir. समजतंय का 50 नंबर आहेत बघा जे इव्हन आहेत आणि डिव्हिजिबल बाय 3 आहेत दॅट्स वाय प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड why programming is required because for human there are limitations we cannot evaluate the things very fast but if we will have an logic along with us from machine we can evaluate such kind of results yes hello Yes. sir. तर आपण थांबतो इकडे थँक यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन आय होप यू हॅव अंडरस्टूड हाऊ टू यूज अँड लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स येस Yes, sir. Yes.